Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Sumaira Khurram and I am working as Senior Subject Specialist in Chemistry at Divisional Public School and Inter College Sahiwal. Welcome to our digital class. I am your chemistry teacher and I will teach you some concepts of chemistry. Let's start our today's topic. Our today's topic is chemical equilibrium. Learning objectives क्या होंगे इसके? To understand the concept of reversible reactions. To understand the chemical equilibrium. इसकी types क्या होंगी? To develop the concept of static and dynamic equilibrium. इन सब के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे. प्रीवियस नॉलेज. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप पिछली क्लास में केमिस्ट्री के बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम ये एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉन्सेप्ट आई वुड लाइक टू रिकॉल सम प्रीवियस नॉलेज बिकॉज सेम टर्म्स आर यूज्ड इन आवर टुडेज टॉपिक, that is chemical equilibrium, which I have already told you. Reactants. Reactants क्या होते हैं? The species which are present on the left side of the chemical equation are called reactants. वो species जो chemical equation के left side पर होती हैं उनको reactants का नाम दिया जाता है. Products, the species which are present on the right side of the chemical equation are called products. वो species जो chemical equation के right side पर होती हैं उनको products कहा जाता है. For example, in this reaction, nitrogen and hydrogen are present on the left side, so they are reactants, and ammonia is present on the right side, so it is product. Students, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपको इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहे हैं, सो इसलिए इसको हम रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं, जबकि अमोनिया आपको इक्वेशन के राइट साइड पे नजर आ रहा है, सो इसको हम प्रोडक्ट्स का नाम दें. फॉरवर्ड रिएक्शंस क्या होते हैं? द रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन. रिवर्स रिएक्शंस, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट is called reverse reaction. वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं उन रिएक्शंस को रिवर्स रिएक्शंस का नाम दिया जाता है. आगे हम इन टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड आयोडीन कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड in forward reaction. Similarly, hydrogen iodide decomposes to form hydrogen and iodine in the reverse reaction. Dear students, reversible reactions क्या होते हैं? The reactions in which product can recombine to form reactants are called reversible reactions. It is shown by double arrow. सामने स्क्रीन पर आपको डबल एरो नज़र आ रहा होगा जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है. दोबारा देखें, वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स बनाते हैं उनको रिवर्स रिएक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल्स कौन कौन सी होंगी? फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन
and iodine will combine to form hydrogen iodide in reversible reaction, which is shown by double arrow. दरमियान में आपको डबल एरो नजर आ रहा होगा जो कि इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है. Similarly, ammonia and hydrochloric acid also combine to form ammonium chloride. At the same time, ammonium chloride decomposes to ammonia and hydrochloric acid, which is also a reversible reaction. रिएक्शन के स्टार्ट में देखें कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों कंबाइन करते हैं इन द फॉरवर्ड रिएक्शन. ऊपर वाला एरो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ शो कर रहा है. फॉरवर्ड रिएक्शन में अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं, जबकि रिवर्स डायरेक्शन में अमोनियम क्लोराइड डिकम्पोज होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया बना रहे हैं. थर्ड एग्जाम्पल इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड also combine to form carbonic acid. At the same time, carbonic acid decomposes to form water and carbon dioxide, which is reversible reaction. So, reversible reactions को दोबारा define करेंगे. A reversible reaction is one which moves in both the forward or backward direction is called reversible reaction. वो रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों साइड बाय साइड चलते हैं उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस का. नाउ इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होंगे? द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन. इट इज शोन बाय सिंगल एरो जो कि सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा. वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट डिकम्पोज ना हो और ना ही दोबारा रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स बनाए उसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जिसको सिंगल एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल्स कौन कौन सी होंगी इसमें? हाइड्रोजन and oxygen combine to form water in the presence of platinum catalyst, but water is not converted into hydrogen and oxygen, and reaction is shown by single arrow. Similarly, sodium hydroxide and hydrochloric acid combine to form sodium chloride and water, but sodium chloride and water do not recombine to convert into reactants. This reaction is also shown by single arrow. Now we start our today's topic is chemical equilibrium. Chemical equilibrium क्या होता है? Equilibrium mean balance. Balance is the person's ability to control their equilibrium in relation to the gravity. Balance का मतलब chemical reactions में reactants और products का मुतवाजन होना है. When the rate of forward reaction is the same as the rate of reverse reaction, the composition of the reaction mixture remains constant. It is called chemical equilibrium. यानी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हों और रिएक्शन के दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की सेम कंपोजिशन हो, जितनी स्पीड में रिएक्टेंट्स बनते हों उतनी ही स्पीड में प्रोडक्ट बनते हैं, तो इस सिचुएशन को हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं. यानी रिएक्शन के दोनों तरफ स्पीड ऑफ रिएक्शन तो सेम होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होगी.
फॉरवर्ड रिएक्शन आगे की तरफ और रिवर्स रिएक्शन पीछे की तरफ मूव करेगा। There are two types of equilibrium. Number one, static equilibrium. Static equilibrium क्या होते हैं? When the reaction ceases to proceed, it is called static equilibrium. जब रिएक्शन मजीद प्रोसीड करने से रुक जाए उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये इक्विलिब्रियम की वो टाइप है जिसको हम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मीन्स द रिएक्शन हैज स्टॉप्ड। इन अदर वर्ड्स, द सिस्टम इज एट रेस्ट। For example, a building remains standing rather than falling down because all the forces acting on it are balanced. अगर हम बिल्डिंग की एग्जाम्पल लें तो बिल्डिंग के ऊपर जितनी फोर्सेस हैं वो सारी फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स ज़ीरो के इक्वल हो जाती है। इसलिए बिल्डिंग की स्टैंडिंग पोजीशन को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम डिस्कस करते हैं। Another example of static equilibrium is stationary book on the table is also example of the static equilibrium because the combined effect of forces acting on the book is zero and the book will be in the स्टेट ऑफ रेस्ट। जितनी भी स्टेशनरी बॉडीज हैं उन सब पर ये रूल अप्लाई होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? हम इक्विलिब्रियम की सेकंड टाइप अब हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम? व्हेन द रिएक्शन does not stop, only the rate of forward reaction and reverse reaction become equal to each other but take place in opposite direction. This is called dynamic equilibrium, जिसमें rate of forward reaction equal होता है rate of reverse reaction के। For example, इन डेली लाइफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन के दोनों तरफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होता है, मगर उनकी डायरेक्शन मुख्तलिफ होती है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन आगे की तरफ और रिवर्स रिएक्शन पीछे की तरफ मूव करता है। ओवरऑल डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज ए स्टेडी स्टेट reached when a reversible reaction occurs at the same rate in both direction. कौन कौन सी डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन, and has an unchanging ratio of products and reactants. डेली लाइफ में हम इसकी एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड की लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डेली लाइफ में तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सहेल करते हैं। ड्यूरिंग देयर एक्सहेलेशन ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। अब एक्सहेलेशन में यही कार्बन डाइऑक्साइड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सहेल कर रहे हैं, एट द सेम टाइम प्लांट्स उनको अपनी फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। सो बोथ कार्बन डाइऑक्साइड and oxygen are involved in dynamic equilibrium. Forward and reverse reaction equal but opposite in direction. Another example of dynamic equilibrium is thermal decomposition of calcium carbonate. सामने आपको डायग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट की इक्वेशन नजर आ रही होगी। कैल्शियम कार्बोनेट फॉरवर्ड रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड
एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं. सी इन डायग्राम में. बट इन डायग्राम बी, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड also recombine to form calcium carbonate, which is shown by double arrow. दोनों डायग्राम में ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम है. ओपन सिस्टम में पिक्चर ए में शो हो रहा है और क्लोज सिस्टम पिक्चर बी में नजर आ रहा होगा. अगर तो ओपन सिस्टम है तो रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा, because all carbon dioxide escapes out from the system, so calcium oxide does not find any carbon dioxide to recombine and form calcium carbonate. But if we use closed system as in picture B, then carbon dioxide remain in the system and can be recombined with calcium oxide to form calcium carbonate. In this system, rate of forward reaction will be equal to the rate of reverse reaction. Rates are equal but opposite in direction. Some other examples of dynamic equilibrium. सामने आपको नज़र आ रहा होगा हाइड्रोजन और आयोडीन फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं. एट द सेम टाइम रिवर्स रिएक्शन में देखें तो हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है. इन द फॉरवर्ड रिएक्शन हाइड्रोजन एंड आयोडीन molecules react with each other to give hydrogen iodide. जैसे कि सामने आपको इक्वेशन में नजर आ रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन में हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं. ये फॉरवर्ड रिएक्शन है. एट द सेम टाइम रिवर्स रिएक्शन अकर्स एंड हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल्स डिकम्पोजेस back to form hydrogen and iodine. जैसे कि आपको इक्वेशन में नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड एट द सेम टाइम डिकम्पोज होगा और हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट होगा. अब इस एग्जाम्पल में देखें तो दोनों रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी. ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कैसे हम इसकी करेंगे? इन द बिगिनिंग द concentration of reactant is higher than that of the product, so the rate of forward reaction is faster than the reverse reaction. As the reaction proceeds, the concentration of the reactants will decrease and concentration of the product will increase. जैसे कि सामने आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा. The rate of forward reaction will go on decreasing and reverse reaction will go on increasing. Hence, the two rates will become equal to each other. For example, in the start of the reaction, as we see in the graph, जैसे कि सामने आपको ग्राफ में नजर आ रहा है कि एक्स एक्सिस पे आपने टाइम को मेंशन किया है और वाई एक्सिस पे आपने रिएक्शन रेट को मेंशन किया. तो शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कम होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम स्टेट में आपको नज़र आएगा. इक्विलिब्रियम स्टेट आपको सामने स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रही है. अब दोबारा देखें. इन द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन एज वी सी इन द ग्राफ, द rate of forward reaction is high because there are only reactant molecules in the reaction mixture, but as the time passes
the product molecules are formed which start recombine or decompose into reactant molecules which lower the rate of forward reaction, जैसे कि सामने आपको डायग्राम में नजर आ रहा है. Initially, hydrogen and iodine will combine to form hydrogen iodide. So, reaction mixture has only hydrogen and iodine molecule. So, forward reaction is higher, but with the passage of time, hydrogen iodide decomposes to form hydrogen and iodine, and rate of reverse reaction starts going on. At last, a time reaches when the rate of forward or reverse reaction become equal to each other and show straight line in the graph. सामने आपको ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नजर आ रही होगी जिसके ऊपर इक्विलिब्रियम स्टेट लिखा हुआ है. ये वो स्ट्रेट लाइन है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी. This straight line in the graph show equilibrium state, which means that the rate of forward or reverse reaction become equal at this stage, but they are in opposite direction. Comparison between static and dynamic equilibrium. दोनों में क्या फर्क है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में देखें, फर्स्ट पॉइंट इसका देखें, दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज रिवर्सिबल इन नेचर. इस इक्विलिब्रियम में नेचर ऑफ रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं. स्टैटिक इक्विलिब्रियम में देखें, दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज इरिवर्सिबल इन नेचर. इस इक्विलिब्रियम में नेचर ऑफ रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब जब रिएक्शन जब एक दफा हो जाता है तो वहीं पर स्टॉप हो जाता है, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होते. सेकंड पॉइंट देखें डायनामिक इक्विलिब्रियम का. इन दिस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर ऑल पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल इक्वेशन. डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्योंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इंटरचेंज हो रहे होते हैं, सो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट करते हैं, बल्कि केमिकल रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं. अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में देखें, देयर इज नो फर्दर केमिकल रिएक्शन इन द सिस्टम. केमिकल रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में. रीजन क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्योंकि तमाम तरफ से फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट जीरो होता है, सो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. थर्ड पॉइंट देखें डायनामिक इक्विलिब्रियम में. इन डायनामिक इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन रेट्स आर इक्वल. रीजन क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, जितनी स्पीड में प्रोडक्ट बनते हैं एट द सेम टाइम प्रोडक्ट डिकम्पोज इनटू द रिएक्टेंट्स कंटिन्यूसली, सो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी. थर्ड पॉइंट देखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम में. इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट ऑफ द रिएक्शंस आर जीरो. स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ रिवर्स और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस जीरो हो जाते हैं, बिकॉज फोर्सेस जो कि चारों तरफ से एक्ट कर रही होती हैं, इनका नेट इफेक्ट जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन जीरो हो जाते हैं. फोर्थ पॉइंट देखें डायनामिक इक्विलिब्रियम का. इट अकर्स इन द क्लोज सिस्टम. ये हमेशा क्लोज सिस्टम में होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम में. रीजन क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन यू हैव ए रिवर्सिबल रिएक्शन इन ए क्लोज सिस्टम. नथिंग कैन बी एडेड टू द सिस्टम और टेकन अवे फ्रॉम इट. एट इक्विलिब्रियम द क्वांटिटीज ऑफ एवरीथिंग प्रेजेंट इन द मिक्सचर remains constant although the reactions are still continuing.
इसी तरह से स्टैटिक इक्विलिब्रियम में देखें, इट कैन अकर बोथ इन ओपन एंड क्लोज सिस्टम. Static equilibrium occurs when there is no exchange between reactants and the product, since the forward and reverse reaction stop occurring and the system will be at static equilibrium. डियर स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करने लगी हूँ जो कि अक्सर एग्जाम्स में आते हैं. नंबर 1, हाउ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड. डायनेमिक इक्विलिब्रियम किस तरह से एस्टैब्लिश होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इसमें किस तरह से काम करते हैं. इसका आंसर आपने जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था वही इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है और ग्राफ भी बनाना है. इसमें क्या होगा इसका आंसर, इन द बिगिनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट is higher than that of the product, so the rate of forward reaction is faster than the reverse reaction. As the reaction proceeds, the concentration of the reactants will decrease and concentration of the product will increase. The rate of forward reaction will go on decreasing and reverse reaction will go on increasing. Hence the rates will become equal to each other. ये ग्राफ भी इसके साथ आप बनाएंगे. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में ज़्यादा होता है क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होगा और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होगा. जब दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट. रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होते. आंसर क्या होगा इसका, in reversible reactions the product recombine to form reactants and this process keep on continuing. Therefore reversible reaction never go to completion at the same rate, and क्योंकि reactants products में और products reactants में change होते हैं, इसीलिए reversible reactions कभी complete नहीं होते. क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट. ये भी आप पीछे पढ़ के आए हैं, इसी की हम डेफिनेशन इसमें लिखेंगे. आंसर क्या है, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम. यानी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिएक्शन के दोनों तरफ बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं. रिएक्शन की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के दोनों तरफ बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी होती. तो ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर कि रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है या रिवर्स डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है. फोर्थ क्वेश्चन देखें, व्हाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप. आंसर क्या होगा इसका, एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप. Forward and reverse reaction keep on taking place at the same rate but in opposite direction. Again वही रीज़न है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन साइड बाय साइड चलते हैं, इक्वल इन रेट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं.
सो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे स्टॉप नहीं होता। रिकैपिचुलेशंस में आज हम देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। नंबर 1, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। क्या होते हैं रिएक्टेंट्स? द स्पीशीज विच आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द स्पीशीज विच आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? वो रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन करके या डिकम्पोज होके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते, उनको इरिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। इसके अलावा आज हमने स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की टाइप्स के बारे में पढ़ा। नंबर 1 स्टैटिक एंड नंबर 2 डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। इसके अलावा आज हमने इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी पढ़ा। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको सॉल्व करें, यह आपकी लर्निंग में हेल्पफुल होगा। नंबर 1, व्हेन द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ए ऑप्शन में क्या होगा? द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बिकम इक्वल। बी ऑप्शन, द अपोजिंग रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टॉप। सी ऑप्शन, the rate of reverse reaction becomes very low. And D option, the rate of forward and reverse reaction become equal. Second multiple choice question देखें। At dynamic equilibrium, A option देखें, the reaction stops to proceed, the amount of reactant and products are equal. C option, the speed of the forward and reverse reaction are equal. And D option देखें, the reaction can no longer be reversed. Third multiple choice question देखें। In an irreversible reaction, dynamic equilibrium, A option, never establish. B option, establishes before the completion of the reaction. C option, establishes after the completion of the reaction. And D option, establishes readily. इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, और इस टॉपिक के हवाले से अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।